So very good afternoon, everyone, all the participants. I'm happy to inform you our today's guest speaker, resource person, Professor Dr. Deepak Panoli has just joined the session, and we will start the session. Ma'am, Yes. please start the session by giving the introduction of our resource person, Dr. Deepak Panoli, sir. Please. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. everybody, all All participants. participants. It's a It's a matter of matter of great great honor and honor and privilege for privilege for me me to to introduce you, introduce sir. you, sir. Professor Dr. Deepak Kanani, sir, having a career spanning over 20 plus years in academia, With a with a distinguished distinguished career career spanning spanning over over 20 20 plus plus years in years in academia academia and and technological technological innovation, innovation, Professor Professor Deepak Deepak Kanoli, Kanani, sir, sir, stands as a stands as a pillar of pillar of leadership leadership and and inspiration at inspiration COER at COER University. University. Armed with a Armed with a PhD, PhD, MTech, MTech, and and BTech in BTech in computer computer science science and and engineering engineering domains, domain. he He brings a brings a powerful power. blend of academic rigor and industry relevance to his role. His deep expertise in artificial intelligence, machine learning, soft computing, and medical diagnostic is reflected in his extensive portfolio of research publications and patents. A mentor to hundreds of aspiring engineers, he is celebrated for his ability to ignite curiosity and drive ambition among students, guiding them toward impactful careers. He is deeply committed to bridging the gap between theoretical learning and practical application, fostering a culture of innovation, collaboration, and future readiness. Under his visionary leadership, the Department of Computer Science and Smart Computing, engineering has emerged as a hub for research excellence and industry driven education. Beyond his academic pursuits, he embraces holistic development and remains a lifelong learner dedicated to both personal and professional growth. Well, I wholeheartedly welcome you, sir. Sir, kindly proceed, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Priyanka, ma'am. Thank you, Siddharth, sir. And it's a nice introduction of me you have given. And I don't think I needed this much of eminent personality. I'm not that type of eminent personalities who requires that brief and detailed introduction. So I'm simply a teachers like you and all, and just here to just present something related to cybersecurity and all. Let me share my screen. Siddharth sir, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, okay. And my voice is clear? Yes, sir. Very much. Okay, good afternoon all. I am Deepak Panuli, just head of the Department Computer Science and Engineering in COER University. And today, first of all, I want to thank organizing committee, Department of Law, for giving me an opportunity to present something related to my field to your field, like cybersecurity and data breaches. And my topic will revolve around IoT securities
and technical vulnerabilities and device securities and legal responsibilities of service provider or manufacturer, right? So let's proceed. Okay, so motivation why we are dealing with cybersecurity nowadays. See, there is a rapid expansion of internet right now, right? Everyone is using internet. We right now we are using the internet, right? I am presenting something from remotely from some other places to COER University, right? So it is due to it is just possible. It happens due to only internet only, right? And once the thing send something on internet, that simply means that we are sending something to open real world where everyone can attack on your data and like that, right? So in the development phases, when computer network just expanded, we come to the cloud systems where our internet becomes the backbone of the system, right? Now the in the current era, what is happening? We are just moving toward the IoT enabled field, right? Enabled area where everything will be an IoT. So first of all, we need to understand what is an IoT. See, we used to use internet using computers, but now nowadays after mobile computing, when mobile just came and internet connectivity just connected those all mobiles. Nowadays what is happening, we are moving to the smart cities or smart environment where every uh, every device is connected with the internet, right? Whether it will be connected with Wi-Fi, whether it will be connected by Bluetooth, whether it will be directly connected by any router or internet, right? So this rapid expansion of connectivity with different devices just come to the end with the name IoT enabled system, right? So everything which can use internet for any type of processing or any type of decision making is it will be referred as IoT devices. What we in just simply, if you are listening IoT, that simply means Internet of Things. Those are the things which are simply connected by the internet for any purpose, whether it will be processing something or whether it will be sending something, whether it will be making some decisions like that. Like if you are using smartwatch, that is IoT. If you are using smart cameras in the home, that is smart IoT devices, right? If you are using smart ACs in the room, that is also a IoT device where everything will be controlled remotely, right? अगर आप ध्यान से देखें तो आपने पास्ट में भी इवन अब तो काफी जो लेटेस्ट अपार्टमेंट्स हैं, जो आज की डेट में अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वो स्मार्ट होम के बेस पे ही बन रहे हैं, जहां पर आपके पास everything will be connected, even your door lock will be connected and controlled by your phone or thumb impression and all, right? So whenever we talk about IoT, that simply comes with the internet connectivity. And whenever we talk about or whenever we listen the term internet connectivity, that simply means we are living in a world where everything is connected via internet, and internet is open to all. See, the founder or the manufacturer or the inventor of internet never copyrighted it so that everyone can use it free of cost, right? So if something is open ended, open source, that means everything have right to connect with it, everything has right to use it, everything has right to simply edit it or modify it accordingly, according to him or her. So there will be always a chance that there will be a सिक्योरिटी थ्रेट, राइट? अगर आपका कोई भी डेटा ओपन वर्ल्ड में पड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी उसे एक्सेस कर पा रहा है, और जब भी कोई भी उसे एक्सेस कर पा रहा है तो कंफर्म है कि कोई ना कोई जो साइबर अटैकर्स होंगे या कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना अनऑथराइज्ड entities होंगी, those will be accessing those, right? So in those cases where everything is on internet, you need to have cyber security system, strong cyber security system. But
whatever you do, whatever how much you security you provide, there are the hackers which are advanced enough to crack your security. So every time whenever we are dealing with the internet, we have the challenge to secure our data, secure our devices and all, right? So in case of IoT, we need to secure our devices, secure our communication channels, and secure our servers from where we are getting some decision making power, right? Computing power. So these are the main fundamental where why we need to understand cybersecurity issues in case of IoT, right? So let's proceed. So what is IoT system? This is the major entity which makes or which for just for form an IoT ecosystem, right? You will be having IoT devices like your smart camera, smart bulb, smart AC, smart refrigerators, smart vehicles. And you can see right now we are having some smart vehicles which are having power of auto start, auto parking services like that. These are the features, new features with the IoT enables vehicles, right? You can have a smartwatch. Those all are the entities which are using your communication for communicating something, data communication, and something. And we are having some cloud services, or we are having some servers which are giving the capability of data pre-processing. So these are the major components. So अगर हम बात करें कि IoT इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, तो जनरली जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हैं वो सब IoT डिवाइसेस हैं, वो उसका एक पार्ट है इस इकोसिस्टम का। और ऑब्वियसली वो कम्युनिकेट करेंगी आपस में, तो कम्युनिकेट करेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन लिंक होगा। सो दो दैट कम्युनिकेशन लिंक विल बी इंटरनेट वाया वाईफाई राउटर और ब्लूटूथ और योर एनी अदर ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, और भी काफी हमारे पास तरीके हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। और डाटा प्री प्रोसेसिंग के केस में हमारे पास जो चीजें होती हैं जनरली क्लाउड होता है, या फिर जैसे आप क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हैं, या फिर सर्वर्स होंगे जो डेटा को प्रोसेस करेंगे। एंड लास्ट एंटिटी विल बी द एंड डिसीजन विच विल जस्ट द आउटकम ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग. So what IoT devices is responsible for sensing some data, right? So for recording some data, like if in case of smart AC, what we call it, it will sense some data from the sensor, right? It will sense room temperature from its heat sensor and just send that data to server from where we are controlling our IoT devices, and in between we are using internet, right? This is the main challenge in every part or every entity of this ecosystem. We are having some challenging security challenges, right? Like in IoT devices. Now IoT devices are not the computers, right? These are the small devices. So if they are small in size, definitely they are small in memory or storage, right? So if you are having low memory, low storage, that simply means that you cannot have any provision or any specific software or antivirus in those devices, right? Because those are meant for sensing data and sending data, right? So you cannot have any antivirus like thing on those devices, because those are having some KBs, MBs of RAM, right? Yeah, in case of your personal computer, you are having GBs of RAM, right? So you can store anything up to the certain GBs. But in case of IoT devices, you have some limited MBs or 10 MBs, 100 MBs of memory, or maximum 500 MBs of memory to store the data, right? So you cannot store some extra thing on those, right? So this is the major challenge where IoT security just lags, right? Because you are not having any antiviruses on the devices itself. And the another problem you can face in case of IoT devices, it will be that it is this market is totally heterogeneous, right? There is no
standard market or no standard protocols which govern the IoT device manufacturing market, right? So sometimes any newcomer in the market in the IoT device manufacturing may develop low code or simple code in their devices, which can be attacked by any hacker, right? Anyone can attack that. And because it is low in memory and low in space, sometimes there are general passwords, right? In those devices, you may just simply putting a password, simply putting username admin and password 12345 in most of the cases, 99% of the cases, right? So it is very easy for any hacker to attack those IoT devices. See, if someone is just hacked your smart home camera, then simply it can see your personal privacy, private life, right? And it can just simple ransomware, ask for ransomware or ask for penalty and all. Like मतलब आपको आपसे डिमांड कुछ भी कर सकता है, वो आपके पर्सनल स्पेस का उसके पास सब कुछ है, जो भी आप कर रहे हैं घर में वो सब कुछ देख पा रहा है। इवन इसका अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो कई मूवीज हैं जो इस पे बनी हैं, जिसमें जिसमें IoT डिवाइसेस का यूज करके हैकर्स आप पे पूरी नजर रखते हैं, राइट? और आपके हर एक मूवमेंट पे नजर रखते हैं और आपको उसके हिसाब से डराते हैं या फिर जिसे कहते हैं धमकाते हैं, राइट? ये तो था IoT इशू के, IoT डिवाइसेस के इश्यूज जो जहां पर हमारे लिए मेजर चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर अब एक मैन्युफैक्चरर और क्या कर सकता है, या तो वो डिवाइसेस को सिक्योर कर सकता है, बट ड्यू टू द नेचर ऑफ हार्डवेयर we cannot supply some additional or sufficient amount of software, antivirus software in those devices, right? So इधर हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसमें हमें सिक्योरिटी इश्यूज हमेशा रहेंगे। बट ये चीज हम लोग सिक्योर कर सकते हैं किस एंटिटी से, जो हमारा इकोसिस्टम, उसमें जो हमारी सेकंड एंटिटी है आपकी, वो है कम्युनिकेशन, जहां पर सबसे ज्यादा डेटा ब्रीच होंगे, है ना? इवन डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्लाउड और एज प्लेटफॉर्म पे भी इतना नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो उनके पास जो भी क्लाउड और एज प्लेटफॉर्म से, दोज आर हैविंग sufficient amount of RAM, some sufficient amount of space for storing any software, any large scale software or any recommended software, right? So there is the low possibility of hacking, right? Or attack, cyber attack. But in case of communication link, there is a huge gap. Means anyone can access any data transmitted, data transmission during the communication time, right? So in that case, we need to have a special provision for controlling these threats or for detecting these threats. You cannot control because you don't know where it is happening, right? After just it happens, then only you come to know that it happened, right? So it in previously you cannot avoid it, but you need to detect it, right? So in that case, in communication place, in communication entity, you have to just have provision to detect some breaches and report it to the uh, admin, or you may say the governing body, right, who can just take actions against it, right? So these are the IoT ecosystem overview. I think it is clear to you all, right? Are you with me, guys? Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. You are audible, sir. Okay. Okay. Thank you. Okay, now when we say that IoT issues, and now see, if you are simply in North India, you may not see some smart homes right now, but in NCR region or in metropolitan cities, you may see there are n number of smart appliances and smart home devices which are in use currently, right? And these are the use of those devices or the provision to use those devices are increasing day by day, right? In exponentially, right? Because we are just living in the world which is the high, which has highest growth rate, right? India has highest growth rate economically this time, right? So in that case, earning per capita, earning of single person is increasing day by day, and as the earning of the people and
users are increasing, those are uh, or moving forward to just do something extra, right? Because livelihood is livelihood need has been completed. Now they are going for luxury life, right? Where they need to have some smart appliances, where sensor based appliances are there, like you need not to just put switch on button and all. It will work and automatically, just in case of we are having some RO purifiers with sensors, right? Where you can just put your glass near the knob of the purifier. It will just drop the water, and after removing from there, it will just simply close the water, right? So this type of luxury life, or this type of what we can say wishes, this type of wishes of luxury life by people is getting IoT growth higher and higher. And day by day, number of devices connected to the internet are increasing exponentially. And as the number of devices will be increasing, definitely the burden on the internet will be increasing, and the geographical presence of IoT devices is increasing day by day. That means from America to from India to Sri Lanka and all, everywhere it is happening, right? So everywhere, every country is connected. So this is the problem, where the problem arises, right? You may have some hackers sitting in America who can hack your IoT devices to observe your movements, right? So जैसे जैसे आपकी devices बढ़ेंगी, वैसे वैसे इंटरनेट पे आपके IoT devices की प्रेजेंस बढ़ेंगी, और जितना ज्यादा आपकी नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके कनेक्ट होंगी इंटरनेट के साथ जियोग्राफिक लोकेशन वाइज, उतना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा हैकिंग के लिए। आप अगर अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो नॉर्मल इंटरनेट था आपका, जो नॉर्मल कंप्यूटर से कंप्यूटर इंटरनेट था, उसे आप कंट्री वाइज तो कनेक्ट कर रहे थे, और कंट्री वाइज से गवर्न कर रही थी आपकी, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, राइट? बॉडी, गवर्निंग बॉडी ट्राई जो थी उसे गवर्न कर रही थी। बट अब जब आईओटी का इशू आया, आईओटी इशूज में क्या प्रॉब्लम है कि अब आपके जो हैकर्स हैं वो केवल इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर से भी आपको हैक कर सकते हैं, और वो ऐसी जगह से हैक करेंगे जहां पर आपके लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है, राइट? आई डोंट नो, मैं मूवीज का एक मूवी का नाम भूल गया हूँ। उसमें एक सिटी दिखाई गई है। मोस्ट ऑफ द जो इंडियंस हैं, जो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जो कम से कम टैक्स भरना चाहते हैं, वो उस देश में जाके अपना बिजनेस ओपन करते हैं, वहां से बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें टैक्स नहीं देना होता, तो इस वजह से उनका बहुत पैसा बचता है। सिमिलरली, जहां पर आपके लॉस काम नहीं करेंगे, वहां पर कोई भी हैकर आपके डेटा के को हैक करेगा, आप पे नजर रखेगा, और उसका कोई मिसयूज भी कर सकता है। तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, उसी के प्रोपोर्शन में आपकी थ्रेट्स भी डे बाय डे इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द रियल चैलेंज। Large number of IoT devices, large number of burden on internet, large number of dependency on internet, large number of geographical presence of hackers, right? And leads to low security on internet, or sorry, IoT network, right? So in that case, you need to have some robust security measures, right? So this is where growth just affect your number of threats on IoT, right? Okay. See, these are the security challenges. Limited resources. The main problem with the IoT devices is that you are not having your computer attached to that, right? Those are having limited RAM, limited computational power. So those are, if they are having limited RAM or limited computational power, so those are the easy target for hackers. Why? Because you cannot store antivirus or any special provision to avoid hacker presence or hacker attack, right? So this is a major security challenge where we need to work upon, right? So those are the highly vulnerable entities in the IoT network, which can be attacked by anyone, right? Even simple hacker can attack those IoT devices. So
in that case, how we can avoid it? In that case, IoT device manufacturers need to come into the play and provide some security mechanism, right? Small security mechanism or small security patches updates, right? The problem with these IoT devices is are that those are very small and very large in numbers, so very tough to manage. Because if you are having 10 things to manage, it is easy, but if you are having lakhs of things to manage, it is toughest job, right? So every time, sometimes it happens, you may not provide some security updates to some devices because of the mass number of mm, IoT devices, right? So this is the major challenges, right? Second problem with IoT is, as I already mentioned earlier, that there is no some standard, or we can say some limited manufacturer, right, or vendor जो आपके IoT बना रहे हैं. इन दैट केस, जब आपके आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं और सभी लोग हैं, क्योंकि आपकी डिवाइसेस बहुत छोटी हैं, इसको बनाने के लिए ज्यादा आपको एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी इस मार्केट में इन्वॉल्व हो सकता है. और देर आर मल्टीपल प्लेयर्स, लैक्स ऑफ प्लेयर्स आर देयर विच आर डेवलपिंग IoT डिवाइसेस, राइट? सो अब सोचिए, जिस इसको इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक ही मिठाई को चार हलवाई की दुकान है, एक ही मिठाई सब बना रहे हैं, बर्फी बना रहे हैं, और सबके टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? सब आप चारों को खाइए, चारों के टेस्ट आपको बता देंगे किसके सबसे अच्छा है, किसका वर्स्ट है ना? तो सिमिलरली, अगर आपका कोई सिंगल हार्डवेयर है, लेट्स से आपके आपका जैसे जो आपके कंप्यूटर वो है स्मार्ट होम्स में, जो आपके स्मार्ट कैमराज हैं, लेट्स से कि उस एक स्मार्ट कैमरा को कई कंपनीज बना रही हैं, तो मे बी द चांस कि कोई कंपनी ऐसी हो जो ड्यू टू जस्ट न्यू एंट्रेंट ऑफ द मार्केट, it is possible that he may not provide sufficient security mechanism for securing hardware, right? So in that case, those are having different types of hardware, heterogeneity will be there, and obviously if they are having different type of hardware, definitely they are having different they will be having different protocols or rules which are governing those hardware, right? So sometimes it will happen that some hardware will consume high power, another manufacturer will consume low power, right? Like the similar type of heterogeneity. So जो आपके नए नए प्लेयर आएंगे, मे बी द चांस कि उनमें से कोई ऐसा हो जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म को उसमें प्रॉपरली इंस्टॉल ना कर रहा हो, और अगर चलो ठीक है कर भी रहा है, इनिशियली वो कर रहा हो, बट वो मैनेज ना कर रहा हो. मान लो उसने इंस्टॉलेशन कर दिया, मान लो पतंजलि ने बोला कि हमारे यहाँ कैमरा इंस्टॉल कर दो, तो उन्होंने एक बिल्डिंग में एक वेंडर से लगवा दिया, दूसरी बिल्डिंग में दूसरे वेंडर से लगवा दिया, एंड ऑल ऐसे करके. अब एक वेंडर उसमें से ऐसा है जो स्टैंडर्ड वेंडर है, फॉर एग्जांपल कैमरा है, कैमरा की कोई मान लो विप्रो कैमरा बनाता है फॉर एग्जांपल, तो वो एक स्टैंडर्ड कंपनी है, बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से काम करती है, और वो ग्लोबल प्रेजेंस है उसकी. और एक जो दूसरा वेंडर है वो लोकल वेंडर है, जो लोकली बना रहा है, लाइक बादराबाद में उसका एक प्लांट है छोटा सा, वहां पे बना रहा है. और वो चूंकि वो एक छोटी सी जगह पे बना रहा है, एक छोटे प्लांट में बना रहा है, तो उस पर ज्यादा गवर्निंग बॉडी उस पर ज्यादा नजर भी नहीं रख रही है, तो इसलिए वो इसका फायदा उठाता है और लो स्टैंडर्ड की तरफ मूव करता है, राइट? और चलो लो स्टैंडर्ड नहीं भी करता है, वो इनिशियली बना भी देता है और अच्छे से उसे लगा भी देता है, बट मैनेजमेंट मतलब मेंटेनेंस के टाइम पे वो थोड़ा सा लैग करता है, क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी मैन पावर नहीं है या फिर इतने अच्छे टेक्नीशियन नहीं है, जबकि विप्रो के पास बहुत अच्छी मैन पावर है और टेक्नीशियन है, तो वो तो रेगुलर बेसिस में मेंटेन कर रहा है, पैचेस अपडेट कर रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है उसके. बट जो लो लो कॉस्ट वेंडर है, जो नया नया वेंडर है, उसने वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे तो हर चीज सब कुछ सही बढ़िया से दिखा रहा है, बट मेंटेनेंस के टाइम पे वो ढंग से इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा है, या फिर अपडेट्स नहीं दे रहा है ना? जो भी आपके सिक्योरिटी पैचेस होते हैं उनको अपडेट नहीं कर रहा है प्रॉपरली. इन दैट केस, जो आपका सेकंड केस है, वेयर न्यू कमर, न्यू एंट्रेंट ऑफ वेंडर इज डूइंग समथिंग, in that case security threats will be high,
वहां पर वेंडर जो भी हैकर्स हैं या फिर ऐसे ऐसे वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं। हैकर्स पूरे नेटवर्क में एक कोड रन करेंगे, उससे उनको ये पता चल जाता है कि आपका किस एरिया में या फिर किस जगह पर आपका या फिर नेटवर्क के किस पार्ट में लो है सिक्योरिटी, मतलब वहां पर सिक्योरिटी पैचेस बहुत पुराने पड़े हुए हैं, राइट। मतलब इसको ऐसे समझिए कि भाई वो आज से 20 साल पुराना कोड पड़ा हुआ है वहां पर उसका सॉफ्टवेयर में। तो जो 20 साल पुराना सॉफ्टवेयर है वो आज की डेट में क्रैक ना कर पा रहा हो कोई, ये तो इम्पॉसिबल है, राइट। तो इसका मतलब जहां पर भी अपडेट्स रेगुलरली नहीं कर रहा होगा मैन्युफैक्चरर, वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज हाईएस्ट रहेंगे और वहां पर ही हैकर सबसे ज्यादा काम करेगा, वहीं पे हैक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो लेटेस्ट जो लेटेस्ट पे है वो तो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जो भी नई नई सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं और नए नए इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं और उन्हें अपडेट भी कर रहे हैं, राइट। बट जो पुराने जो लो लो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर हैं उनकी उनके पुअर मेंटेनेंस के कारण हैकर्स को एक एरिया और या स्कोप मिल जा रहा है जहां पर वो हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा चैलेंज आपके पास सिक्योरिटी का एक ये है, क्योंकि आपके पास जो हार्डवेयर और डिफरेंट डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है और डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है, तो मे बी द चांस कि कोई पुअर मैन्युफैक्चरर जो नहीं से मैनेज कर पा रहा है सॉफ्टवेयर पार्ट पर, उसकी डिवाइसेस हैक होना बहुत इजी है, राइट। Third security challenge we are having in IoT system is lack of standard. See, when we are talking about internet, it is already standardized, right? But in case of IoT devices, the protocols or framework is not at all standardized. Every manufacturer has its own framework, and maybe the chance कि आपका कोई weak framework use कर रहा है तो इजी टू क्रैक है, वो हैकर्स के लिए बहुत इजी है वो क्रैक करना, राइट। तो अगर आपके स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क नहीं है, अगर आप स्टैंडर्डाइज की को समझना हो आपको, तो आप ऐसे समझिए अगर आपने इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 सुना होगा, राइट। तो दीज आर द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, राइट। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। और जब हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, अगर हमने किसी चीज का स्टैंडर्ड बनाया है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपने पब्लिक डोमेन में डिक्लेयर किया है कि अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, आपको अपने डिवाइसेस को इंटरनेट पे डालना है, तो आपको जो भी डिवाइस बनानी है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को सपोर्ट करनी चाहिए या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आप अपने सिक्योरिटी अपने सॉफ्टवेयर में इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं दे रहे हैं तो यू कैन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, राइट। तो ये क्योंकि आप कनेक्ट तो हो जाएंगे, डिवाइस कनेक्ट कर देंगे, पर कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। कम्युनिकेशन के लिए आपको जो प्रोटोकॉल चाहिए IPv4 चाहिए या फिर IPv6 चाहिए, वो आपका हार्डवेयर सपोर्ट दे नहीं रहा है उसको, तो कम्युनिकेट कैसे होगा, राइट। तो जैसे इंटरनेट के लिए ये है, ऐसा कोई IoT के लिए अभी तक स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते जो ये डिफाइन करते हो कि हाँ अगर कैमराज हैं तो उनके लिए ये स्टैंडर्ड्स हैं, और मतलब स्मार्ट कैमराज है तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, स्मार्ट AC हैं तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर वेदर सेंसर्स हैं तो उनके ये स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है ना। कुछ कंट्रीज में है, कुछ में नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया में तो नहीं है, बट इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हाईली जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर हर चीज के लिए प्रोटोकॉल डिफाइन है। तो वहां पर कुछ, हम ये नहीं कहते कि वहां पर 100% डिफाइंड है, 100% स्टैंडर्डाइज्ड है, बट है, मतलब इंडिया से तो काफी बेहतर उसमें है वो कंडीशन में उनके प्रोटोकॉल मैकेनिज्म। So these are the security challenges we are having with IoT devices. सो टेक्निकल क्वालिटी पे आ जाते हैं। अभी तक हम जो आप देख रहे थे ओवरव्यू, एक ओवरव्यू था कि भाई ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम पॉसिबल है, और दीज आर द टेक्निकल प्रॉब्लम जो हम डिस्कस ऑलरेडी कुछ हम इसमें से डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इनसिक्योर फर्मवेयर एंड वीक क्रेडेंशियल जो हमने अभी बताया था, है ना। तो अगर थर्ड वन इज वनरेबल इंटरफेस, तो जो भी आपका IoT डिवाइस है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसमें जनरली जो आपके इंस्टॉलेशन करने वाले हैं दोज आर नॉट टेक्निकली दैट मच ऑफ साउंड, और वी कैन से इवन इवन यूजर ऑफ दैट IoT डिवाइस इज नॉट साउंड एनफ टेक्निकली, कि भाई उसको पता ही नहीं है कि भाई आपकी जो डिवाइस है इंटरनेट पे है तो आपको पासवर्ड जो रखना है या क्रेडेंशियल जो रखना है वो स्ट्रांग रखने हैं। तो वो जो मैन्युफैक्चरर का जो इंस्टॉलेशन करने वाला आता है,
वो पूछता है यूजर से कि सर पासवर्ड क्या रखना है, तो बोल देता है कि यार कुछ भी रख दो, मुझे बता दो बस। तो अब जब जब सामने से यूजर ही यही बोलेगा, तो टेक्निकल जो बंदा है वो क्या कहेगा, ठीक है सर आपका पासवर्ड एडमिन है और पासवर्ड सॉरी यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 है। नाउ अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। हमारे जो हैकिंग इतनी एडवांस है कि उसने RSA 1024 को भी क्रैक कर दिया है, और पासवर्ड लाइक 1 2 3 4 5 ये सबसे इजी है क्रैक करने। एक कोड चलाना है, विद इन 1 मिनट वो क्रैक कर जाएगा ऐसे। ठीक है। तो अगर आप लोग वीक क्रेडेंशियल रख रहे हैं, मतलब अगर आप IoT डिवाइसेस में वीक क्रेडेंशियल डाल रहे हैं, तो जनरली ये देखो, ये यूजर की भी प्रॉब्लम नहीं है, यूजर कितने पासवर्ड याद रखे, राइट। तो वो इस झंझट से बचने के लिए इजी रहे याद करना, इसलिए वो कहता है कि आप डाल दो मुझे बता देना, जनरल पासवर्ड डाल दो मुझे बता देना। इवन मैं बात करूं, अगर अभी तो स्मार्ट कैमरेज भी नहीं लगे हुए हैं लोगों के घर में, पर जो कैमरे लगे हुए हैं सर्विलेंस के लिए, उनका भी जो पैनल है उसका पासवर्ड भी देखना, आधे से ज्यादा ने एडमिन और 1 2 3 या 1 2 3 4 5 रखा होगा, जो कि इजी है क्रैक करना। तो इजी इजी क्रैकिंग के लिए इजी है, तो वहां पर वल्नरेबल है सिचुएशन, क्योंकि आपने सिक्योर नहीं करा। और इवन इवन जो IoT डिवाइसेस हैं उनके पास अपना OS ऐसा कोई, जैसे हम लोग अभी जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं सामने, एक कंप्यूटर है, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बट जनरली जो IoT डिवाइसेस होती है बहुत छोटी रैम या छोटे स्पेस में होती है, तो उनका कोई अपना आई OS तो होता नहीं है। उनको तो बस डेटा को सेंस करना है, रिकॉर्ड करना है एंड सेंड कर देना है, राइट। और सेंड कहाँ करना है, एजेस क्लाउड क्लाउड पे कर देना है या फिर सर्वर पे कर देना है। तो इसके लिए उसको किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है ना। तो अब वो क्या करेगा, आपने जो क्रेडेंशियल रखे हैं, समटाइम्स कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो जो आपने क्रेडेंशियल रखे हैं उन्हें टेक्स्ट फॉर्म में रखते हैं। वो टेक्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल एडमिन लिख दिया और उसका पासवर्ड वो स्टोर कर दिया आपके ही IoT में, IoT डिवाइस के अंदर। अब आप सोचो कि अगर कोई हैकर उसे हैक कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत उसको उसको तो पहली अटेम्प्ट में ही वो इन हो जाएगा, और उसको अंदर एक फाइल मिलेगी जिसके अंदर पासवर्ड डायरेक्टली लिखा है, सिंपली एडमिन एंड 1 2 3 4 5। वो उसको सामने व्यू हो गया, तो वो कैसे कैसे भी आपका बड़े प्यार से उसको हैक कर लेगा। बट सोचो अगर वहीं पे वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेता, और दूसरा काम ये करता कि उसे टेक्स्ट फॉर्म में ना रखता, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखता, राइट। इनक्रिप्शन, आई थिंक आप लोगों को पता होगा इनक्रिप्शन क्या होता है। नो सर। इनक्रिप्शन होता है, आप इसको ऐसे समझिए, स्पेशल कैरेक्टर। इसको आप ऐसे समझिए, स्टेगनोग्राफी जैसे होती है ना, कि भाई आप छुपाते हैं डेटा को, है ना। तो आप कुछ नहीं करते छुपाने के लिए, आप जैसे मान लो हेलो है ना। हेलो, तो आपने कहा कि मैं जब जब भी ए आएगा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको डी से रिप्लेस करूंगा, जब बी आएगा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैं उसे जेड से रिप्लेस करूंगा, राइट, लाइक दैट। तो यानी कि आपने उसका एक फॉर्म चेंज कर दिया, मतलब इनक्रिप्ट कर दिया। अब यूजर, इसको मैं आपको जस्ट अ मिनट, मैं आपको इनक्रिप्शन का एक, आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना। यस सर, यस सर। यस सर। है ना। तो मान लो मैंने कहा कि मैं, मेरी जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है वो कुछ ऐसी है कि जब भी एच आएगा तो मैं उसको उसको रिप्लेस करूंगा वाई से, है ना। और जब भी ई आएगा मैं उसको रिप्लेस करूंगा जेड से या फिर ओ से। और जब भी एल आएगा तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा डी से। और जब भी बस ओ आएगा तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा ए से। ठीक है। तो इस ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। मैं थोड़ा इसको टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो ये आपकी जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ये आपकी इंक्रिप्शन की है, जिसमें आपने डिफाइन किया हुआ है कि जब भी एच आएगा नॉर्मल टेक्स्ट में मैं उसको वाई से रिप्लेस करूंगा, ई आएगा तो ओ से, और एल आएगा तो डी से, और ओ आएगा तो ए से। तो व्हाट विल बी द इंक्रिप्टेड टेक्स्ट, वाई ओ डी डी ए, राइट। अब नेटवर्क में
जब मेरे को नेटवर्क में भेजना होगा, जब भी मैं सेंड करूंगा अपना डेटा नेटवर्क में, जब भी मैं भेजूंगा तो मैं क्या भेजूंगा, ये। ठीक है। अब सोचो, अगर मेरे नेटवर्क में कोई हैकर है और उसे रीड करता है, तो वो क्या रीड करेगा, योडा, राइट। यस सर, यस सर। हाँ, मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल टेक्स्ट मेरा हेलो है, बट जब मेरा नेटवर्क में जो जाएगा वो जाएगा योडा, क्योंकि जो मैंने इंक्रिप्शन किया है, इंक्रिप्टेड डाटा है जो, वो जाएगा। और अगर आप इसे हैक करेगा तो वो योडा पड़ेगा, उसको कोई सेंस ही नहीं पता चलेगा इसका। उसे ये नहीं पता कि इसका ये क्या भेजा गया था। पता तो इतना तो उसे पता है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, मतलब ये ओरिजिनल डेटा तो है नहीं, हेलो तो नहीं है, उसको ये नहीं पता कि हेलो भेजा गया था। उसको ये पता करने में कि हेलो, ये हेलो था, उसके लिए अगर वो कोई डिक्रिप्शन एल्गोरिथम या फिर कोई क्रैकिंग एल्गोरिथम चलाएगा भी, तो उसको कम से कम एट मिनिमम, अगर बहुत एडवांस एल्गोरिथम है तो एट मिनिमम उसको 1 आवर चाहिए, और 1 आवर में तो ये नेटवर्क से होके निकल भी जाएगा डाटा, राइट। तो ये योडा को वापस हेलो में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वो एल्गोरिथम यूज करे, उसको चाहिए मिनिमम 1 आवर। और 1 आवर में डेटा जिसके पास जाना चाहिए, जिसके पास डिक्रिप्शन की है, जिसके पास ये की है, वो उसे पहुंच जाएगा और उसे रीड कर लेगा, उसका मीनिंग ले भी लेगा, राइट। तो ये है इनक्रिप्शन, मतलब ओरिजिनल फॉर्म को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जो जो कोई सेंस ना बनाए, है ना। मतलब जो अगर कोई रीड कर भी ले इंटरनेट पे या फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल के दौरान, तो वो उसे समझ ही नहीं पाया इसमें भेजा क्या गया था, जबकि हमने भेजा था हेलो। तो जो सामने जिसको हमने भेजा था, उसके पास ये की होगी, ये की होगी, तो वो उसे डिक्रिप्ट करेगा। तो जब वो उसे डिक्रिप्ट करेगा, जब वो डिक्रिप्ट करेगा, तो वो यहाँ पर उसका इसका रिवर्स करेगा। जहां पे हमने एच को वाई से करा था, तो वाई को एच से करेगा, ओ को ई से करेगा, डी को एल से करेगा, और ए को ओ से करेगा। तो जो ये लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली हेलो में, राइट। तो जो सामने टारगेट यूजर है उसको तो सही दिखेगा, बट अगर इन बिटवीन किसी ने उसे हैक किया तो उसे योडा दिखेगा इन प्लेस ऑफ हेलो। दिस इज कॉल्ड इनक्रिप्शन, जो हमारे इंटरनेट पे यूज होता है, राइट। तो इंटरनेट पे अगर आपका जा रहा है डेटा, तो ऑलरेडी वो एडवांस फॉर्म में जा रहा है, बट फिर भी हैकर्स इतने ज्यादा एडवांस हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी डिक्रिप्शन एल्गोरिथम बना ली हैं जो किसी भी एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकती है, भले वो टाइम लगे। और इवन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, जो टास्क 5 साल में होना था, वो 5 मिनट में हो जा रहा है, राइट। तो अब तो चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हैकर ने क्वांटम कंप्यूटिंग सीख ली और उसके पास क्वांटम कंप्यूटर का एक्सेस हो गया, तो जो कैलकुलेशन नॉर्मली जो रिवर्स कर रहा था, वो जो डिक्रिप्शन नॉर्मली हजारों साल में होना था, वो डिक्रिप्शन विद इन 5 मिनट कर लेगा वो, right. So these are the challenges arising day by day with the introduction of new technologies, faster technology, right. तो अगर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, तो अब सोचो, अगर एक बार तो केस है जिसमें आपका पासवर्ड नॉर्मल टेक्स्ट में पड़ा हुआ है, कोई भी पढ़ लेगा उसे हैक करके। बट अगर वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो उसको जो बहुत टाइम लगने वाला है, और कोई भी आपका ज्यादा टाइम नहीं देगा ऐसी डिवाइस को हैक करने के लिए जिससे उसे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, राइट। तो जो भी हैकर होंगे यहाँ पर आप देखिए, जितने भी आईओटी के हैकर हैं, ये जनरली इनका पर्पज ये नहीं है कि ये कोई बैंक को हैक करने वाले, इनका पर्पज केवल इतना है कि कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को सर्च आउट करते हैं। ये मान लो कोई बिजनेस ओनर है कोई, उसकी प्राइवेट लाइफ में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, ये प्राइवेट लाइफ जानने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं बाय हैकिंग हिज आईओटी डिवाइसेस, राइट। और एक बार उनको कुछ मिल जाए, है ना, कुछ डेटा मिल जाए जिससे उस यूजर को वो रैंसमवेयर के लिए कॉल कर सके। इनका टारगेट केवल इतना ही है। लार्ज स्केल पे अगर कोई आईओटी डिवाइसेस पे अटैक करेगा, तो वो नॉर्मली हाउस के मतलब स्मार्ट होम्स के अप्लायंसेस पे अटैक नहीं करेगा। उसे अगर करना होगा तो बड़े बड़े जो कहते हैं ना अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके उस पे अटैक मारेगा वो, है ना। वो भी बिजनेस
ट्रांजेक्शन्स को रीच आउट करने के लिए, ना कि घर की प्राइवेसी को रीच आउट करने के लिए, है ना। तो जनरली हम लोग जो आईटी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक तो प्राइवेसी मेंटेन करनी है यूजर की, और एक किसी भी तरह से वो आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। और डेटा जनरली अगर आप देखेंगे तो डेटा आपका, अगर आप मोस्ट ऑफ द डेटा आप देखें तो आपका मोस्ट ऑफ द डेटा तो सर्वर पे पड़ा हुआ है, क्लाउड पे पड़ा हुआ है, वहां पे तो इतना आसान है नहीं क्रैक करना। तो वो क्रैक करने के लिए कहाँ जाता है, या तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो इन बिटवीन जहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का, और या फिर आईओटी डिवाइसेस पे अटैक करता है। और वो इस होप में अटैक कर रहा है कि मे बी द चांस किसी यूजर ने गलती से सेम पासवर्ड रखा हो अपने किसी आईओटी का जो कि उसके अकाउंट का है, राइट। अगर मान लो मेरे मेरे जो मेरा अकाउंट है बैंक का, अगर मैं वही सेम पासवर्ड वीक वीक क्रेडेंशियल है जिसका, वो सेम पासवर्ड मैं रख रहा हूँ अपनी आईओटी डिवाइस में, तो ऑब्वियसली अगर गलती से वो पासवर्ड मैंने रखा और वो पासवर्ड उन्होंने उन्होंने रीड आउट कर लिया, और उसका यूज एक बार हिट एंड ट्रायल में उन्होंने मेरे अकाउंट नंबर डाल के कर लिया और उनको मेरा अकाउंट का एक्सेस मिल गया, then only they can consume my whole money, right? अदरवाइज जनरली स्मार्ट होम्स को तो एक्सेस करने के लिए कोई यूजर प्राइवेसी में घुसेगा, वो भी मिडिल क्लास में तो नहीं, एटलीस्ट वेरी हाई क्लास पर्सनैलिटीज जो होंगी उनके उसमें घुस सकता है रैंसमवेयर कॉल करने के लिए, राइट। दूसरा आपका जैसे अब प्रॉब्लम क्या है कि आप चूंकि आईटी डिवाइसेस हेट्रोजीनियस वेंडर बना रहे हैं, अलग अलग वेंडर बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनके फर्मवेयर भी चांसेस हैं कि किसी का वीक हो, और जिसका भी फर्मवेयर वीक होगा। फर्मवेयर कुछ नहीं होता, फर्मवेयर वो होता है जो आपका हार्डवेयर को कंट्रोल करता है ना। तो जनरली जो छोटी छोटी डिवाइसेस हैं उनमें फर्मवेयर्स होता है, और जो बड़ी बड़ी आपके जैसे कंप्यूटर्स हैं ये, इनमें जो होता है इन्हें सॉफ्टवेयर का टर्म देते हैं। तो फर्मवेयर मतलब एक मैन्युफैक्चरर ने छोटी सी डिवाइस बनाई और उसको उस पे उसको उसको ऑपरेट करने के लिए, या फिर उसमें जो भी आईसीज काम कर रही हैं उसका जो एक छोटा सा कोड है, लो कोड जिसे हम बोलते हैं, छोटा सा बिल्कुल, उससे हम फर्मवेयर बोलते हैं। फर्म मतलब किसी फर्म का, है ना, फर्म ने बनाया है वो, तो नाम इसलिए उसका फर्मवेयर दिया गया क्योंकि हार्डवेयर के से कोरिलेट करता है ना। सॉफ्टवेयर इन द केस, सॉफ्टवेयर हम तब बोलते हैं जब हम किसी बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं और जहां पर एक ही टास्क नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप हीट सेंसर की बात कर रहे हैं, तो उसका केवल एक ही टास्क है, हीट को सेंस करना और उसको रिकॉर्ड करके वापस करना, इतना टास्क है। इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, ये काम आईसी में हम कोड कर सकते हैं यूजिंग फर्मवेयर, राइट। तो चूंकि फर्मवेयर है, बहुत छोटा होता है कोड, वहां पर सिक्योरिटी प्रोविजंस कम से कम होते हैं, इस वजह से उन्हें एक्सप्लॉइट करना बहुत ज्यादा आसान होता है, इसलिए दोज आर वेरी क्रिटिकल और वल्नरेबल टू क्रैक, राइट। तो अगर इनसिक्योर फर्मवेयर यूज कर रहे हैं आपके मैन्युफैक्चरर, तो प्रॉब्लमेटिक है कंडीशन। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप घर में स्मार्ट चीजें लगा रहे हैं वो किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर का ही लगाएं बजाय लोकल वेंडर का, राइट। क्योंकि कई बार कॉस्ट बचाने के चक्कर में अपने काफी चीजें हम लोग खो बैठते हैं, ठीक है। So those are the technical vulnerabilities which are having in IoT devices. This is the main issue, authentication and authorization issue, where you are not having any provision to authenticate the user of your IoT, right? You are not having in case like just if you are using this system, if you are using your computer, you are having some login provision. Now you need to enter your password, right? But sometimes IoT manufacturers don't have those provisions, है ना? Those are directly accessible by directly controlling interfaces, API interfaces, right? So there is no security provision, access control mechanism, and multi-factor authentication. Like multi-factor authentication means but no biometric is there to access those devices, or two-step verification which you are using in Gmail where you are getting OTP, right? अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो आपकी जो IoT है वो हाईली वनरेबल है अटैक्स के लिए या फिर ब्रीचेस के लिए, है ना। तो अगर आप किसी तरह से आपके जो फर्मवेयर है, फर्मवेयर में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देते हैं, तो आपके पूरे चांस है कि आपका जो आईओटी है वो सिक्योर रहेगा। एल्स मान के चलिए कि आप जो भी आईओटी यूज कर रहे हैं दोज आर इजीली क्रैकेबल, राइट। ठीक है।
So this is also a major issue, and it needs to be resolved by manufacturer part only. In case of communication channel problem issues, you need to have encrypted transmission. If you are sending your data in normal text form, it can be read by any user in between the network, right? But if you are sending something which is in encrypted form, uh, like this, which we have discussed, then you may have some securities, है ना? Otherwise, you cannot have ensure your security over the internet or communication channel, right? Insecure API, weak API, which don't have any proper security measures like authentication, like user control, user password enabled user input, right? So in that case, anyone can access those unauthorized way, right? And any unauthorized access may lead to data breaches, right? So you need to have some secure APIs which you use in managing in your IoT devices, right? Okay. So फर्मवेयर, जैसे मैं अभी बता भी रहा था कि आपको जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं इसके, उनको अपने जितने भी सिक्योर डिवाइसेस हैं, दोज नीड टू बी अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस, राइट? हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें अभी से पता है। मान लो मैंने कोई IoT डिवाइस बनाई मेरी कंपनी ने, तो और मैं न्यू कमर हूँ इस फील्ड में, राइट? तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे को अभी तक पता है वो तो मैं अपने सॉफ्टवेयर में डालूंगा ही डालूंगा, है ना, अपने फर्मवेयर में डालूंगा ही डालूंगा। जस्ट इन केस उसके बाद अगर मैं रेगुलरली चेक नहीं कर रहा हूँ कि कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कौन कौन से थ्रेट्स आए हैं या वायरसेस आए हैं, लाइक दैट, है ना, इसको ऐसे समझिए कि आपको नहीं पता कि कल के दिन कौन सा नया वायरस आ रहा है ना। तो उस केस में आप रेगुलरली पैचेस, जो सिक्योरिटी पैचेस है वो अपडेट कर नहीं रहे हैं अपने फर्मवेयर में, तो उसके पूरे चांस है कि वो फ्यूचर में इजीली क्रैक किया जा सकता है। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड हैं, मार्केट में जो भी रिस्क आ रहे हैं, जो भी जिसे कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, या फिर जो भी वायरसेस आ रहे हैं, या जिस टाइप का, जिस नेचर का कोई थ्रेट आ रहा है ना, वो अगर आपको पता है, तो आप अपने जो डिवाइसेस हैं उनको रेगुलर बेसिस पे सिक्योरिटी पैचेस से अपडेट करते रहो, तो आप मतलब बच जाएंगे बजाय उससे, इनसिक्योर IoT इकोसिस्टम से, राइट? अब एक प्रॉब्लम और आती है जब भी हम IoT की बात कर रहे हैं। मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर था IoT डिवाइसेस का, तो मैंने पास्ट में जब इनिशियल लॉन्च किया था, तो मैंने कुछ जो डिवाइसेस बनाई थी, वो बनी थी 20 साल पहले बनाई थी मैंने, और आज की डेट में जो मैं डिवाइसेस बना रहा हूँ, दोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज, है ना? और ना ही उस टाइम पे ऐसे प्रोविजंस थे जो कि हम लोग कर सकते थे, है ना? तो जो जो पुरानी डिवाइसेस हैं उनमें रेगुलरली अपडेट अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो डिजाइनिंग हुई थी वो इस हिसाब से हुई थी कि भाई इनको तो लो कोड चाहिए, बट आज की डेट में तो चलो हम कुछ मेमोरी देने लगे हैं उसमें। ऐसी डिवाइसेस हमेशा रिस्क में रहेंगी जहां पर रेगुलरली पैचेस नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी आउटडेटेड है, अपडेट हो नहीं पा रही है, क्योंकि उसके उसके जो उसकी जो कहते हैं ना हार्डवेयर है, वो उस टाइम पे इतनी थी कि वो कुछ लिमिटेड सिक्योरिटी ही ले सकती थी। बट 20 साल के दौरान ऐसे ऐसे अटैक्स हुए हैं जिनके अगेंस्ट अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर पैचेस बनाए हैं, डेवलप करे हैं कंपनी ने, तो वो उन अनसपोर्टेड डिवाइसेस पे डाल ही नहीं पा रहा है, राइट? मैं डाल ही नहीं पा रहा हूँ अपने पुराने डिवाइसेस पे। तो मुझे या तो उन डिवाइसेस को ही हटा के नई डिवाइसेस लगानी लगानी चाहिए, नहीं तो वो डिवाइसेस अगर वहां पर रही, कॉस्ट मैंने बचाने के चक्कर में उन डिवाइसेस को वहां पर रखा, तो पूरे चांस है कि वो अटैक हो सकती हैं। ठीक है। बाकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, जनरली हम लोग जो भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर वाला काम अपने आप से नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी को देते हैं। और थर्ड पार्टी, एक बार आपका कुछ भी चीज अगर थर्ड पार्टी संभाल रही है,
तो चांसेस विल बी देयर कि भाई वहां पे कहीं पे सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, कोई आपके जो फर्मवेयर है उसके कोड को शेयर कर दे आपके कॉम्पिटिटर को, राइट। तो या फिर आपने अपडेट्स के दौरान किसी ऐसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया जो कि किसी थर्ड पार्टी ने बनाई थी और जिसमें कोई बग था, है ना, ताकि वो एंटर कर सके आपकी आईओटी डिवाइस में, तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है वहां पर। तो एट द टाइम एट the scene of firmware we need to just update our IoT devices on the regular basis with the updated own libraries, right? Don't use third party libraries. So ये वही चीज है जो मैं बता रहा था कि कोई भी IoT डाटा ब्रीचेस अगर होते हैं, जैसे आपके कैमरा है तो उसके क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से क्या कहते हैं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया स्मार्ट कैमरास एंड ऑल, कि अगर कोई हैक कर ले तो आप पे पूरी नजर रखी जा सकती है और कभी भी रैंसमवेयर कॉल की जा सकती है ना। ठीक है, ये तो हम चुके हैं कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो डेटा ब्रीचेस के क्या प्रॉब्लम है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो डेटा इज द मनी, राइट। अगर आपका डेटा ही आपने लूज कर दिया तो मॉनेटरी टर्म में तो आपको नुकसान होना ही होना है, राइट। और प्राइवेट केस में, इंडिविजुअल केस में अगर आपके कुछ प्राइवेट चीजें हैं किसी के पास, तो ऑब्वियसली बात है वो आपको रैंसमवेयर के लिए कॉल कर सकता है। ठीक है, तो तीनों एंड पे जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं आपके आईओटी इकोसिस्टम में, तो आपके आईओटी इकोसिस्टम में जनरली तीन आपके वो हैं एंटिटीज, जहां पर आपको स्टेक होल्डर्स है, तीन ही स्टेक होल्डर्स हैं जहां पर जो कुछ कर सकते हैं आपकी वल्नरेबिलिटी को या क्रिटिकलनेस को अगेंस्ट साइबर क्राइम रोकने के लिए। वो तीन ही चीजें हैं, एक तो मैन्युफैक्चरर जो डिवाइस बना रहा है, एक प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है या फिर क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और एक नेटवर्क ऑपरेटर जो इन बिटवीन आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इन तीनों ही एंड पे अगर सिक्योरिटी प्रोविजन एक साथ नहीं दिए गए, कहीं पे भी अगर लैग कर गई सिक्योरिटी, तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी आईओटी को, जो भी आपका आईओटी नेटवर्क है उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी, क्योंकि कहीं पे भी आपके पास स्कोप नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड है, क्योंकि प्रोवाइडर एंड और ऑपरेटर एंड पे सफिशिएंटली रिसोर्सेज होते हैं तो वो लोग मैनेज कर रहे हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग एंड पे चूंकि डिवाइसेस में लिमिटेड साइज, लिमिटेड रैम्स हैं, लिमिटेड स्पेस है, अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, स्टैंडर्ड कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड है। वहीं पे सबसे ज्यादा उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा वही होगा आईओटी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बाकी एंड तो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज हैं और प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं और उन्हीं को यूज किया जा रहा है, तो वहां पर लो पॉसिबिलिटी है कि कोई अटैक करे, बट मैन्युफैक्चरिंग एंड पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर कोई कंपनी या मैन्युफैक्चरर लो सिक्योरिटी की वजह से यूजर का डेटा लॉस करता है, तो अगर लीगल सिस्टम उसे स्क्रूटिनाइज कर रहा है और उसे पेनलाइज कर रहा है प्रॉपरली, देन मे बी द चांस कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ अच्छे प्रोविजन लाए मार्केट में और यूजर डेटा को सिक्योर करने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे, अगर वहां पर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है लीगली आईओटीज को, देन इट मे बी द प्रॉब्लम फॉर दैट कंट्री ओनली, है ना। बिकॉज क्योंकि इंडिया में तो मेरे को लगता है कि अभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं है लीगल सिस्टम को, आईओटी को गवर्न करने के लिए अभी भी लीगल सिस्टम इतना ज्यादा जागरूक नहीं है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता है अभी कि आईओटी में चल क्या रहा है। बट जैसे जैसे मार्केट में आईओटी एक्सपेंड करेगी, मे बी द चांस कि गवर्नमेंट भी उसके बारे में सोचेगी और लीगल सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, राइट। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मस्ट फॉर एनी कंट्री आईओटी। साइबर लॉ जो मैं भी बात कर रहा था कि लॉ लॉ सिस्टम पेनलाइज करने के लिए डिफॉल्टर्स को अगर वो एक्टिवेटेड हैं, तो चांसेस कम है कि आपके इनसिक्योर आईओटी के होने के चांसेस कम से कम होंगे। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, होप यू एंजॉयड इट।
Yes, sir. Sir, first of all, I congratulate you. Are very thankful for the excellent PPT you have presented in a very beautiful manner so that a layman person can understand the minute detail about the technology, the Internet of Things. And I also have seen you have discussed all the stakeholders, either it is a manufacturer, either it is a provider or the operator, and also the major challenges we are facing regarding the cyber attack, cyber threat, and it is this threat is not only in the India, it can be out of the country as well. So that is very challenging for us. And for the legal thing, I think we have the DPDP Act, which is passed in the 2023, and it's working on that. And Dr. Penelli, your ability to simplify the complex technical framework has left our participants, in fact, including us also, with much clearer roadmap regarding the IoT and its cyber security and its challenges and all the things related to the IoT. So thanks again for making your time and give the detailed study and analysis regarding the cyber security, cyber threat, and the IoT. And one thing I want to share regarding the credential. I don't know about other, but I have the only one credential and one password for few of the accounts. Either it is related to ERP or bank. So I will try to change it to save myself from the cyber attack or cyber threat. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Thank, Thank you. thank you, sir. So within 4 to 5 minutes, actually this session increase the time of the specified schedule, but within 5 minutes, I most probably our next speaker, that is Dr. Shivani Singh from the Department of Sociology, MIT Law School, MIT University, Noida. She will overview about the sociological impact regarding the digital privacy and digital impact. Okay, so wait for a couple of minutes.